Good afternoon, all the participants. On behalf of the Academy, I welcome each one of you for today's session on official language policy. And to take up the session, we have Sri S. Anand Kumar, is Raj Bhasha Adhikari, Iriset, Secunderabad. Welcome, sir, and it's over to you to come in the session. बहुत बहुत धन्यवाद बनर्जी. नमस्कार. नमस्कार, नमस्कार साहब. Thank you. जी साहब. तो आरंभ करें सर. जी सर. जी सभी ऑनलाइन उपस्थित प्रतिभागियों को मैं प्रणाम करता हूं. नमस्कार. गुड आफ्टरनून. आई एम ऑडिबल. Yes sir, audible. Okay, okay. Sir, all participants are muted. At the end of session, we will unmute them. So please continue the session. Yeah. I will continue. Okay. तो जैसे आप सब जानते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द यूनियन, लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड व्हाट इज नेशनल लैंग्वेज. पिछले सेशन में जो लोग अटेंड नहीं हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि व्हाट इज नेशनल लैंग्वेज एंड व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज. We are having 22 languages in our 8th schedule of Indian Constitution. Those 22 languages are called national language. Okay. Last time जो लोग अटेंड नहीं किए उनके लिए बता रहा हूँ. I think some of the people who attended last session. Okay. Some of the candidates are attended. So these are all new. Nageshwara garu. Sir, tell me sir. सर सभी लोग नए लोग हैं या अभी पिछली बार अटेंड किए थे? लास्ट टाइम Sir, अटेंड tell me sir. Sir, tell me. These are all new candidates or last time attended? I think some new people are joined. Sir, please continue. Most of the people are continuously attending. Maybe new people are also attending, but you continue with the continuation of this part 1. Achha. Okay, then I will give introduction also for those candidates who are joined today also. But it is difficult to start from first one. Achha. Please continue from the last one. Okay. So there is a possibility that if they wish, they can watch the previous recording in the YouTube channel. If they want, they can see your first part 1 in the part one also. Yeah, YouTube they can watch. Okay, I will continue. Okay, I will start with part 1 also. So No, please start from part 2. Okay. So ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी है इसके बारे में लास्ट टाइम भी मैंने बताया था. सी व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड व्हाट इज नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज. द डिफरेंसेस यू कैन नो हियर. व्हाट आर द डिफरेंसेस आर देयर? हेलो. यस. So official language is a recognized language spoken in the wide part of the state or states that was found and included in the 8th schedule of Constitution of India. The importance of the language. So this is official language. You see राज्य और यहाँ राज्यों के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली मान्य भाषा
जिसकी लिपि हो तथा उस भाषा की महत्ता के आधार पर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हो. Those languages which are included in 8th schedule of Constitution of India, those are called national language. And what is official language? An authorized language by the government in which the official work is being done or to be done. As per Article 210 of Constitution, state government can authorize Hindi or the regional language as official language. As per Article 343 of Constitution, Hindi in Devanagari script is the official language of the Union. So this is the difference between official language and national language. नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में यही अंतर है कि जो राजभाषा है, राजभाषा का मतलब है कि आधिकारिक भाषा, सरकार की भाषा, सरकार द्वारा वह अधिकृत भाषा जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है. इसमें संविधान के अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य सरकार हिंदी या उस राज्य में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकती है. अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी है. ठीक है. यदि किसी को डाउट हो, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट यू कैन क्लियर इट. आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछिए. यस, आगे बढ़े. राजश्री खंडेकर जी, आर कुमार, एनीबॉडी हैविंग डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछिए. विश्वास जी. Sir, please continue. At the end of session, we will check any queries from the participants. अच्छा, okay. Then you Please continue with the PPT. At the end, last 10 minutes, we'll check up with the participants. Any queries? Okay. Right. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. As you can see on the screen, the difference between official language and the national language. जैसा मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि राजभाषा और राजभाषा में क्या डिफरेंस है. तो राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है जिसको राजभाषा स्वाभाविक रूप से सज्जित शब्द है और राजभाषा प्रशासन की भाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है. केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है, जबकि समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है. राजभाषा की शब्दावली सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत है. राजभाषा नियमों में बंदी है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है. इसमें शब्दों का प्रवेश, निर्माण अथवा निष्कासन विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा में शब्दों का प्रवेश समाज से तथा प्रचलन के आधार पर रूढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हुए तथा इसके निर्माण में सभी वर्गों का हाथ होता है. इसी प्रकार राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्रमशः उत्तर अंग्रेजी की जगह होकर हो रहा है, जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश विदेश में सर्वत्र हो रहा है. And what are the 22 languages you can see here? The 8th schedule of Indian Constitution. Those 22 languages included in 8th schedule of Constitution. असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़ा, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिंदी. And then Sindhi also added in 1967, as I told you in the last session. And Nepali, Konkani, Manipuri, 3 languages added in the year of 1992. And then 4 languages included Bodo, Santali, Maithili and Dogri in the year 2004. So as on date, the 22 languages are included in 8th schedule of Indian Constitution. Anandji, the PPT is not moving. You are not moving the PPT. PPT is not moving. PPT is not moving. Yes, not moving. Please scrolling it. Screen पे क्या दिख रहा है? Only the first slide we are seeing official language.
Only first slide. Huh? Only first slide. Please move. Yes, it is moving. But here it is not showing, sir. So Yeah, it is here. It is moving. yeah, participants, is it scrolling or Also participant. yeah, it is not there. sir. Participants. It is moving here. Not moving. Not moving. Please check your technical. Person. Please close the share screen again. Start share screen. Again, start the share screen. Yeah. Again, I am doing. Yes. It is moving. Now it is okay. Now it is okay. Now it is okay. Yeah. Please continue. Yeah. Yeah. Please continue. Okay. Yes. So as you see, the 22 languages are included in 8th schedule of Constitution. Those languages you can see on the screen. These are the languages: Assamia, Odia, Urdu, Kannada, Kashmiri, Gujarati, Tamil, Telugu, Punjabi, Bengali, Marathi, Malayalam, Sanskrit, Hindi, Sindhi, and 3 more languages: Nepali, Konkani, and Manipuri, and Bodo, Santali, and Maithili, Dogri. These are the 22 languages which are included in 8th schedule of Constitution. In this, the Nepali is our foreign language which are included in our Constitution also. So these are the 22 languages. As per examination point of view, you can note down these languages also for clarification, and they may ask in the examination also how many languages are there in the 8th schedule of Indian Constitution and what are they. So these languages you have to remember. Okay, carry on. So, Constitution, the articles which are included in the official language policy, Part 5, Article 120, Part 6, Article 210, and Part 17, Article 343 to 351. The provision is given for official language in our Constitution in these parts. Let us see the brief of Article 120, Article 210, and Article 343 to 351. So what is in Article 120? Sansad ki bhasha, language to be used in Parliament. So what is Article 120? You can see on the screen also in Hindi and English also. So notwithstanding anything in Part 17, but subject to the provisions of Article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English. Any member, he can speak in Hindi or in English, provided that the chairman of the Council of States or Speaker of this House of the People or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother tongue, own mother tongue. So यदि कोई किसी सांसद को हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती है, तो in that case he can speak in his own mother tongue with the permission of chairperson.
लोकसभा या राज्यसभा के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनकी अनुमति से वो सांसद अपनी ओन मदर टंग में, मातृभाषा में अपना वक्तव्य दे सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 120। आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। हिंदी में भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी में या अंग्रेजी में वो बोल सकते हैं। यदि वो नहीं, हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती है तो अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 210। एक मिनट, Anand ji, again PPT is not moving. जी पीपीटी इज नॉट मूविंग। Yes, same problem. सेम प्रॉब्लम। Only we are seeing the slide Rajbhasha Hindi, that's all. The 4th slide. Why it is not moving? हाँ, अच्छा, उन्होंने क्या पूछा फिर डीन साहब ने, और कुछ बताया? सर अभी नहीं बोला है सर। అచ్చా నాగేశ్వరరావు గారు, నేను మళ్ళీ ఇది షేర్ చేస్తున్నాను. చేయండి ప్లీజ్ షేర్. మూవ్ చేయండి. Yes, now it is moving. When you are explaining, please move the current slide. కరెక్ట్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుందా? Yes, now we are seeing part 5, article 120. Yes. Now move one more slide. Yes, Sansad ki Bhasha. Now please start. Okay. ठीक है, तो ये है आर्टिकल 120 इज ऑन, एंड नाउ वी कम टू आर्टिकल 210. ओके, सो आर्टिकल 210 व्हाट इट सेज, विधान मंडल में प्रयुक्त भाषा है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर assemblies, notwithstanding anything in part 17, but subject to the provisions of article 348, business in the legislature of a state shall be transacted in the official language or languages of the state or in Hindi or in English, provided that the speaker of the legislative assembly or chairman of the legislative council or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the house in his own mother tongue. So, जो भी विधानमंडल में विधानमंडल के सदस्य हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वे वहाँ की राज्य की राजभाषा या राज्य की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या हिंदी में या अंग्रेजी में बोल सकते हैं। यदि वे इन भाषाओं में नहीं बोल पाते हैं तो वो अपनी मातृभाषा में बोलने का अनुमति ले सकते हैं।
Okay, this is Article 210. Now becomes Part 17. Article 343 to 351. Now it is moving, Nageshwara Garu. Slides are moving. Yes, sir. Carry on. Okay. So now we comes Part 17. Article 343 to 351. Briefly, we can see that what are the provisions are given in constitutional provision of Part 17. Article 343, we will see what is the 343. This is the official language of the Union. Shall be in Hindi in देवनागरी स्क्रिप्ट. संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी और उसकी लिपि होगी देवनागरी. And the form of numerals, अंकों का प्रयोग to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals. यानी कि भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा the figures 1 2 3 figures that should be written in the form of international form of Indian numerals. यानी कि भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा. And notwithstanding anything in clause 1, for a period of 15 years from the commencement of this constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union, for which it was being used immediately before such commencement. Okay. So इसमें किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था. तो इसमें जो है ये प्रावधान दिया था कि जो 15 साल तक की अवधि के लिए अंग्रेजी भाषा को भी बनाए रखें. तो यह है आर्टिकल 343. नाउ कम्स 344. 344 में क्या है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति यानी कि कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. दैट इज आर्टिकल 344 अनुच्छेद 344. The President shall, at the expiration of 5 years from the commencement of this Constitution, and thereafter, at the expiration of 10 years from such commencement, by order, constitute a commission which shall consist of a chairman and such other members representing the different languages specified in the 8th schedule, as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the commission. यानी कि जो 5 साल की अवधि में एक राजभाषा आयोग का गठन होगा एंड देन ए पार्लियामेंट्री कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड जिसमें कि लोकसभा के और राज्यसभा के 30 मेंबर उसमें शामिल होंगे. दैट प्रोविजन इज गिवन इन आर्टिकल 344. कमीशन एंड राजभाषा कमीशन एंड Parliamentary Committee on Official Language. This is the provision given in Article 344. 344 में ये प्रावधान दिया है कि 8वीं अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा. That is Article 344. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. 345. What is in 345? The provision given in 345 is official language or languages of a state. यानी कि राज्य की राजभाषा या राजभाषा है. That is provision given in Article 345. That is subject to the provisions of Article 346 and 347. The legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as this language or languages are to be used for all or any of the official purposes of that state, provided that until the legislature of the state otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the state for which it was being used immediately before the commencement of this constitution. यानी कि राज्य की जो राजभाषाएं हैं, जो भी भाषा वहाँ राज्य में बोली जाती है, क्षेत्र में बोली जाती है, किसी भी राज्य में बोली जाती है, उस भाषा को राजभाषा बनाने का दर्जा दिया गया.
परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। दोस्तों उसमें जो है ये प्रावधान दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर दोज ऑफिशियल पर्पसेस within the state for which it was being used immediately before the commencement of this constitution. That provision given in the article 345. Now comes 346. Okay, it is moving. Slides are moving, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So now comes to 346. आर्टिकल 346 में क्या है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, that means official languages for communication between one state and another or between a state and the union. The language for the time being authorized for use in the union for official purposes shall be the official language for communication between one state and another state and between a state and the union, provided that if two or more states agreed that the Hindi language should be the official language for communication between such states, that language may be used for such communication. यानी कि एक या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। यह प्रावधान 346 में दिया गया है। जो भी संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग है उसके लिए जो है यह प्रावधान दिया गया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 346 हो गए, अब आते हैं 347 आर्टिकल 347। 347 में क्या है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, यानी कि स्टेट में जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को राजभाषा बनाए। On a demand being made in that behalf, the president may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be officially recognized throughout that state or any part thereof for such purpose as he may specify. यानी कि जनसंख्या के आधार पर तो पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकता है। फॉर प्रेसिडेंट यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। दैट इज आर्टिकल 347। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 347 के बाद आते हैं 348। प्रोविजन गिवन इन 348 इज लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा। उसमें जो है इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा को भी इसमें साथ में रखा गया है। लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स and for acts, bills, etc. So notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, until Parliament by law otherwise provides, all proceedings in the Supreme Court and in every High Court, the authority to text of all bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a state, of all acts passed by Parliament or the legislature of a state, and of all ordinances promulgated by the President or the Governor of a state, and of all orders, rules, regulations, and by laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the legislature of a state shall be in the English language. So इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में
पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयक या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के अनुरूप राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। ये प्रावधान दिया है आर्टिकल 348 में। These are the provisions for आर्टिकल 348। अब आते हैं 349। 349 में क्या है? स्पेशल प्रोसीजर फॉर एनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉस रिलेटिंग टू लैंग्वेज। ओके, भाषा से संबंधित इसमें कुछ विधियां अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है। During the period of 15 years from the commencement of this constitution, no bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause 1 of article 348 shall be introduced or moved in either house of parliament without the previous sanction of the president, and the president shall not give his sanction to the introduction of any such bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the commission constituted under clause 1 of article 344 and the report of the committee constituted under clause 4 of that article। तो इसमें संविधान के प्रारंभ से जो 15 वर्ष की अवधि में के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए इसमें उपबंध किया गया है। दैट इज आर्टिकल 349। इसमें भाषा से संबंधित विधियां अनियमित की गई है। ओके, चलिए अब आते हैं 350। 350 में क्या है? आर्टिकल 350, अनुच्छेद 350। That is language to be used in representations for redressal of grievances। तो इसमें क्या है कि every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the union or a state in any of the languages used in the union or in the state as the case may be। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यथा निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथा स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में वो अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा। He can give any representation in any language used in state or union। That is article 350। Okay, अब आते हैं 351। This is important article। किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि what are the provisions given in article 351। अनुच्छेद 351 में क्या प्रावधान दिया गया है इसका उल्लेख करें बोल के ये कई बार डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यू कैन बाय उसमें गो थ्रू विद दिस आर्टिकल। सो इसमें क्या प्रावधान है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश डायरेक्टिव्स गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज इन दिस आर्टिकल। So it shall be the duty of the union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the 8th schedule, and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit and secondarily on other languages। यानी कि मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करके हिंदी भाषा का विकास करना, इस प्रकार करना कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली, पदों का आत्मसात करते हुए
और जहाँ आवश्यक हो, वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए संस्कृत से और गौड़ भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। दैट इज आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास का निर्देश, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये प्रोविजन दिया गया है इसमें अनुच्छेद 351। ओके, कोई भी डाउट्स हो तो बाद में पूछ लेना। सेशन के बाद आपको डाउट पूछने का उसकी अनुमति दी जाएगी। लास्ट में आपको जो भी इसमें आपको प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, राजभाषा अधिनियम 63 और राजभाषा नियम 76, इसके बारे में भी हम ब्रीफली देखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वार्षिक कार्यक्रम में। एनुअल प्रोग्राम जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, राजभाषा विभाग से एक एनुअल प्रोग्राम जारी किया जाता है, दैट इज वार्षिक कार्यक्रम। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो अभी देखते हैं राजभाषा अधिनियम 1963। What is Official Language Act 1963? You can see on the screen the definition of the Official Language Act 1963. In this act, unless the context otherwise requires, appointed day in relation to section 3 means the 26th day of January 1965, and in relation to any other provision of this act means the day on which that provision comes into force. So Hindi means Hindi in Devanagari script. तो ये इसकी परिभाषा है। तो इसको जो है नियत दिन से यानी धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उसके 15 साल बाद ये एक्ट लागू किया गया। और हिंदी से हिंदी अभिप्रेत है, जिसकी लिपि देवनागरी है। इसमें कुल 9 सेक्शंस हैं, 9 धाराएं हैं। और इसमें धारा 3 यानी सेक्शन 3 ऑफ सब क्लॉज 3 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो विल कम टू सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। दिस इज सेक्शन 33 यानी कि धारा 3 की उपधारा 3 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। कई बार इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में कि what are the documents that comes under section 33 of Official Language Act 1963. So these are the documents which you are seeing there. The 14 types of documents are there that should be issued in bilingual form. तो सबसे पहले है सामान्य आदेश यानी कि जनरल ऑर्डर्स, नियम, रूल्स, ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, रेजोल्यूशंस, प्रेस रिलीजेस, administrative and other reports, contracts, agreements, license, permit, tender form and tender notices. ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, these documents should be invariably issued in bilingual form, compulsory. इसमें जो है कोई इसमें छूट नहीं रहती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें आए थे हैं धारा 3 में, वो धारा 3 के सभी प्रलेख दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है। Compulsorily it should be issued in bilingual form. Okay, then अब आते हैं for official language rules 1976. These are the official language act sections, अलग अलग sections हैं। कमिटी on official language। अब आते हैं राजभाषा नियम 1976, official language rules 1976। इसमें क्या है, इसमें टोटल 12 नियम है, जो पिछली बार भी मैंने बताया था। अभी जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी मैं ये नियम बता रहा हूँ, जो कि राजभाषा नियम बनाए गए हैं 1976 में। इसका सबसे पहला जो नियम है ये देखिए, फर्स्ट नियम, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसमें है इन नियमों का संक्षिप्त नाम है राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 है। यानी कि these rules may be called the official languages used for official purposes of the Union rules 1976. They shall extend to the whole of India except the state of Tamil Nadu, and
They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. तो इसका विस्तार जो है तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। This is rule number 1 of official language rules 1976. अब आते हैं नंबर 2। रूल नंबर 2 इज, जैसे कि आप सब जानते हैं, रीजन ए, रीजन बी एंड रीजन सी। पूरे भारतवर्ष को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, इसमें जो भारतवर्ष में जितने राज्य हैं, that are all states, union territories are classified in 3 regions, रीजन ए, रीजन बी एंड रीजन सी, यानी कि क्षेत्र क, क्षेत्र ख और क्षेत्र ग। तो क्षेत्र क में कौन से राज्य आते हैं? ए रीजन में यू कैन सी हियर बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये पूरे हैं ए रीजन का क्षेत्र में। और इनकी जो राजभाषा है वो भी हिंदी है। हिंदी बेल्ट जो भी है वो सब ए रीजन में रखे गए हैं, क क्षेत्र में। एंड ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिहित है। दीज आर दी बी रीजन एंड रिमेनिंग ऑल जो भी ए और बी में नहीं है, that are all comes under C region. That is, region C means the states and the union territories other than those referred to in clauses 1 and 2. And A and B में जो नहीं है वो सभी C region में आते हैं। So these are, you can see on the map also. The orange color represent for A region and the blue color represents B region and the green region represent to C region, ग क्षेत्र, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। इस प्रकार से पूरे देश में क्षेत्रों में उसको क्लासिफाइड किया गया है भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक रीजन्स एज पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूल्स। इसमें क्लियर कट आप देख सकते हैं। साउदर्न रीजन जो भी है वो सभी सी रीजन में है एंड 7 स्टेट्स आल्सो, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम वगैरह, एंड आल्सो जम्मू एंड कश्मीर आल्सो कम्स अंडर सी रीजन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स टू रूल नंबर 3। व्हाट इज रूल नंबर 3? कम्युनिकेशंस टू स्टेट्स एंड अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, यानी राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्राचार, correspondence. So communications from a central government office to a state or a union territory in region A or to any office not being a central government office or person in such state or union territory shall save in exceptional cases be in Hindi, and if any communication is issued to any of them in English, it shall be accompanied by a Hindi translation thereof. यानी कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क में, ए रीजन में, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय ना हो या व्यक्ति को पत्र आदि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे, हिंदी में पत्राचार किए जा सकते हैं। और यदि उनमें से किसी को कोई पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। That is rule number 3 of official language rules 1976। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 का सब क्लॉज 2 है, communications from a central government office to a state or a union territory in region B or to any office not being a central government office in such state or union territory shall ordinarily be in Hindi, and if any communication is issued to any of them in English,
it shall be accompanied by Hindi translation thereof. यानी कि इसमें भी जो है भी रीजन में भी अगर हिंदी में कोई पत्राचार होता है तो उसका अंग्रेजी में अगर होता है तो हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, कम्युनिकेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, कम्युनिकेशंस यानी कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय के बीच पत्र आदि। तो केंद्रीय सरकार के किसी भी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र आदि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। That means between one ministry or department of the central government and another may be in Hindi or in English. Between one ministry or department of the central government and attached or subordinate offices situated in region A shall be in Hindi and in such proportion as the central government may having regard to the number of persons having a working knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communication in Hindi and matters incidental thereto determined from time to time. यानी कि हिंदी में पत्रावली भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करेंगे। ये प्रावधान है अनुच्छेद, ये रूल नंबर 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। नाउ कम्स रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है? हिंदी में प्राप्त पत्रावली के उत्तर यानी कि रिप्लाईज टू द कम्युनिकेशंस रिसीव्ड इन हिंदी। जो भी पत्र आपको हिंदी में मिलेंगे उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। Notwithstanding anything contained rules 2, 3 and 4 communications from a central government office in reply to communications in Hindi shall be in Hindi only। जो भी पत्र आपको हिंदी में मिलेगा तो नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालय से हिंदी में ही दिए जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6। व्हाट इज रूल नंबर 6? यूज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करना यानी कि जो सेक्शन 33 में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताया वो डॉक्यूमेंट्स दोनों भाषाओं में जारी करना। तो both Hindi and English shall be used for all documents referred to in subsection 3 of section 3 of the Act, and it shall be the responsibility of the persons signing such document to ensure that such documents are made, executed or issued both in Hindi and in English। यानी कि जो साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, जो भी उन दस्तावेज पर जो अधिकारी हस्ताक्षर करने वाले होते हैं, वो हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ये सुनिश्चित कर ले कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं। यह है नियम 6, रूल नंबर 6। एंड नाउ कम्स रूल नंबर 7, एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा। एक मिनट बोलिए। हाँ, एक 1 आवर के बाद। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे रूल नंबर 7 मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। An employee may submit an application, appeal or representation in Hindi or in English. Any application, appeal or representation referred to in such rule 1 when made or signed in Hindi shall be replied to in Hindi only। जैसे कि कोई भी कर्मचारी आवेदन या अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। जब उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हो तब उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। Where an employee decides any order or notice relating to service matters including disciplinary proceedings required to be served on him to be in Hindi or as the case may be in English, it shall be given to him in that language without
undue delay। देखिए, यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है तथा स्थिति हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए, तो वह उसे असम्यक विलंब के बिना, देरी किए बिना उसी भाषा में दी जाएगी। यह है रूल नंबर 7 में यह प्रावधान दिया गया। अब आते हैं रूल नंबर 8, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना। दैट मीन्स वोटिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। कोई भी कर्मचारी यदि किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है, लेकिन और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे। यानी कि एन एम्प्लॉई may record a note or minute on a file in Hindi or in English without being himself required to furnish a translation thereof in the other language. And no central government employee possessing a working knowledge of Hindi may ask for an English translation of any document in Hindi, except in the case of documents of legal or technical nature. If any question arises as to whether a particular document is of a legal or technical nature, it shall be decided by the head of the department or office. उस ऑफिस के जो प्रशासनिक प्रधान होते हैं यह निर्णय करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो विधिक है या तकनीकी प्रकृति का है, तो प्रशासनिक प्रधान ही इसका निर्णय करेगा। अब आते हैं रूल नंबर 8 के 4 है और यह है रूल नंबर 9, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त किसे कहेंगे? Who is having proficiency in Hindi? An employee shall be deemed to possess proficiency in Hindi if he has passed the matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination, or he has taken Hindi as an elective subject in the degree examination or any other examination equivalent to an or higher than the degree examination, or he declares himself to possess proficiency in Hindi in the form annexed to these rules, then he will be called as proficiency in Hindi. हिंदी में उसको प्रवीणता प्राप्त मानेंगे, जबकि वो मैट्रिक या उसकी समतुल्य परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया है या स्नातक में हिंदी मेन सब्जेक्ट लेके पढ़ा है, या फिर अगर प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तब उसके बारे में मान लिया जाएगा कि वो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, एज पर रूल नंबर 9 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। नाउ कम्स रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में देखिए, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त, वर्किंग नॉलेज, हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। An employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if he has passed the matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subjects, or the Pragya examination conducted under the Hindi teaching scheme of the central government, or when so specified by that government in respect of any particular category of post, any lower examination under that scheme, or any other examination specified in that behalf by the central government, or if he declares himself to have acquired such knowledge in the form annexed to these rules। तो इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई कर्मचारी मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा हिंदी में एक विषय लेकर पढ़ा है, या हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण किया है, या फिर कोई विशिष्ट कोई अन्य परीक्षा पास किया है, या फिर कोई घोषणा अगर करता है कि वो हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। दैट इज रूल नंबर 10 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। नाउ कम्स रूल नंबर 11, कोड्स, मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि, यानी कि मैनुअल्स, कोड्स, अदर प्रोसीजरल लिटरेचर, आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी एक्सेट्रा, ये सभी दोनों भाषाओं में होना अनिवार्य है। एज पर रूल नंबर 11, ऑल मैनुअल्स, कोड्स एंड अदर प्रोसीजरल लिटरेचर relating to central government offices shall be printed or styled, or as the case may be, and published both in Hindi and English in diglot form
हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी होने चाहिए। The forms and headings of registers used in any central government office shall be in Hindi and in English. हिंदी में भी होना है और अंग्रेजी में भी होना है। All nameplates, signboards, letterheads, inscriptions on envelopes and other items of stationery written, printed and script for use in any central government office shall be in Hindi and in English, both languages, दोनों भाषाओं में रहना है। Provided that the central government may, if it is considered necessary to do by general or special order, exempt any central government office from all or any of the provisions of this rule. जब तक के कोई केंद्र सरकार द्वारा किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या इन्हीं उपबंधों से छूट नहीं दे सकता, तब तक जो है ये सभी सामग्री हिंदी और इंग्लिश में होना अनिवार्य है। Okay, this is rule number 11 of official language rules 1976. Now comes rule number 12, अनुपालन का उत्तरदायित्व, responsibility for compliance. इसमें क्या है? It shall be the responsibility of the administrative head or of each central government office to ensure that the provisions of the act and these rules and directions issued under sub rule 2 are properly complied with, and to devise suitable and effective checkpoints for this purpose. The central government may from time to time issue such directions to its employees and officers as may be necessary for the due compliance of the provisions of the act and these rules. So, ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि these rules, constitutional provisions, official language acts, all these should be complemented or be implemented in his office. अनुपालन का उत्तर जैसा आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। यह है रूल नंबर 12. So these are the 12 rules of official language rules 1976. Okay. So now we will go to annual program 2021-22. तो ये वार्षिक कार्यक्रम जो जारी होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के राजभाषा विभाग से, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है एवरी ईयर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी। तो इसमें ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन के लिए जो प्रावधान है ये आप देख सकते हैं। यू कैन सी इन इंग्लिश आल्सो डिटेल्स ऑफ सी रीजन में originating correspondence in Hindi, including telegrams, wireless, telex, fax, files, etc. From C to A, C region, जैसे कि आप जानते हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया, C region से A region, हिंदी स्पीकिंग एरिया। So 55% target is there for originating correspondence. हिंदी में पत्राचार करने के लिए 55% का टारगेट दिया गया है फ्रॉम सी ग क्षेत्र से क क्षेत्र के लिए, और ग क्षेत्र से ख क्षेत्र के लिए यानी कि सी टू बी 55% एंड सी टू सी 55%, एंड फ्रॉम रीजन सी टू ऑफिशियल इंडिविजुअल इन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ ए एंड बी रीजन इट शुड बी 85% फॉर करेस्पॉन्डेंस। हिंदी में पत्राचार 55% सी रीजन वाले कर सकते हैं, सी टू ए, सी टू बी एंड सी टू सी। अब आते हैं लेटर्स रिसीव्ड इन हिंदी टू बी आंसर्ड इन हिंदी। एवरी रीजन, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, आइदर एनी रीजन 100% शुड बी इम्प्लीमेंटेड। हिंदी में पत्राचार का उत्तर देना, दैट इज 100%, 100%। नोटिंग इन हिंदी, दैट इज 30%। रिक्रूटमेंट ऑफ हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर्स, दैट इज 40%। एंड डिक्टेशन इन हिंदी, हिंदी में जो डिक्टेशन देते हैं दैट टारगेट आल्सो गिवन 30%। And Hindi training language, typing, stenography, that should be 100%. And preparing bilingual training material, जो भी ट्रेनिंग मटेरियल होता है, जो प्रशिक्षण सामग्री होती है, वो भी 100% हिंदी में भी होना है। And the expenditure for the purchase of Hindi books
including Hindi e-books out of the total library grant, excluding journals and standard reference books, that should be 50%. जो भी हिंदी पुस्तकें खरीद की जाती है वो 50% बुक्स हिंदी में भी खरीदे जाना है. And purchase of all electronic equipments including computers, that should be also in bilingual form. यानी कि हर कंप्यूटर में आजकल तो इनबिल्ट है, हिंदी में भी उसकी व्यवस्था की गई है, तो सभी कंप्यूटर्स भी बाइलिंगुअल होना है. एंड देन वेबसाइट also should be in 100% bilingual form. And citizen charter and display of public interface information board 100%. And inspection by ministries, departments, offices located outside Delhi, that is 25% minimum. कम से कम 25% निरीक्षण किए जाने चाहिए. Inspections of sections at headquarters, that is also 25% minimum. कम से कम 25% निरीक्षण inspection करना है. Joint inspections by the officers of the concerned department and those of the Department of Official Language of foreign based undertakings, offices, etc., owned or controlled by the central government. That is also at least 4 inspection in the year. यानी कि साल में कम से कम 4 इंस्पेक्शंस तो करना ही है. एंड मीटिंग्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें होती हैं, अलग अलग स्तर पर जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें हैं, तो वो है सबसे पहले सबसे बड़ी जो मीटिंग कमेटी होती है वो हिंदी सलाहकार समिति. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक होती है साल में 2 बैठकें, 2 मीटिंग्स इन ए ईयर. और एक होता है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दैट इज ऑफिशियल टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी. वो भी साल में 2 बैठकें होती है, एवरी 6 मंथ्स. और एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जो कि कार्यालय में होती है, सभी डिविजन्स में, हेडक्वार्टर्स में, स्टेशंस में, हर जगह जो बड़े बड़े स्टेशंस होते हैं, बड़े कार्यालय होते हैं, सभी जगहों पर जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें होती है वो साल में 4 बैठकें होना अनिवार्य है. 4 मीटिंग्स इन ए ईयर. एंड ट्रांसलेशन ऑफ कोड्स, मैनुअल्स, फॉर्म्स, प्रोसीजर, लिटरेचर, जैसा एज पर रूल नंबर 11 में मैंने बताया, दैट इज आल्सो 100%. Sections of the ministry department where entire work to be done in Hindi, that is 20% minimum sections. कम से कम 20% सेक्शंस में भी हिंदी में कार्य होना है. So these are the annual program. As per annual program, these points to be noted. अब आते हैं नेक्स्ट, इंसेंटिव्स. हिंदी में जो भी आप हिंदी में काम करते हैं या कोई भी हिंदी में पुस्तकें लिखते हैं, राइटिंग बुक्स इन हिंदी और एनी सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट और एनी ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हैं, उन सभी के लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स. वो क्या इंसेंटिव्स है ये आप अभी देख सकते हैं. सबसे बड़ा पुरस्कार है राजभाषा गौरव पुरस्कार. इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंसेंटिव स्कीम फॉर राजभाषा. यह है भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार. दिस इज राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना है. The first prize is 2 lakhs rupees and the second prize is 1,25,000. The third prize is 75,000 and the consolation prizes, 10 consolation prizes are there, each one is 10,000. तो ये सबसे बड़ा राजभाषा गौरव पुरस्कार है. जो भी लोग ज्ञान विज्ञान पे जो किताबें लिखते हैं मूल रूप से हिंदी में, नॉट ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेशन नहीं, मूल रूप से यानी कि ओरिजिनली दे आर रिटन इन हिंदी, ज्ञान विज्ञान के ऊपर जो पुस्तक लिखते हैं उनके लिए ये राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है. एंड नेक्स्ट आते हैं केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा
गौरव पुरस्कार, यानी कि जो भी केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज, ऑफिसर, रिटायर्ड एम्प्लॉइज सहित. This English version also is there. You can see in English version also. I will show you later on. ये इंग्लिश वर्जन में भी आप देख सकते हैं. इसको जो है इट इज देयर इन इंग्लिश वर्जन आल्सो. तो राजभाषा गौरव पुरस्कार हो गया. नेक्स्ट वन इज प्रथम पुरस्कार इज 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार है 60,000 रुपए. ये भी राजभाषा गौरव पुरस्कार है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज के साथ इसको भी दिया गया है, मूल रूप से जो भी पुस्तक लेखन करते हैं. फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 75,000, थर्ड प्राइज 60,000 एंड द कंसोलेशन प्राइज इज 30,000. ओनली वन कंसोलेशन. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कार्मिकों और सेवानिवृत्त साहित्य को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार, यानी आर्टिकल, उत्कृष्ट आर्टिकल, द बेस्ट आर्टिकल जो भी लिखते हैं वो है हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए. प्रथम पुरस्कार है 20,000, द्वितीय पुरस्कार है 18,000, तृतीय पुरस्कार है 15,000. एंड हिंदीतर भाषी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में जो लोग लिखते हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल, उनके लिए पुरस्कार है 25,000 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 22,000 एंड थर्ड प्राइज इज 20,000. और उत्कृष्ट लेख यानी कि द बेस्ट आर्टिकल रिटन इन हिंदी मूल रूप से, दिस इज ऑल्सो राजभाषा गौरव पुरस्कार. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट. जो भी टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट है उसके लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है. हिंदी में जो लिखते हैं तकनीकी पुस्तक, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए ये लाल बहादुर पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है. इसमें क्या है? फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकंड प्राइज 10,000 एंड थर्ड प्राइज इज 7,000. तो ये है, इसमें 3 पुरस्कार दिए जाते हैं. तो मौलिक लेखन के लिए लिखे जाते हैं टेक्निकल विषय पर. एंड देन कम्स प्रेमचंद पुरस्कार. प्रेमचंद पुरस्कार किस लिए देते हैं? फॉर राइटिंग ओरिजिनल स्टोरीज, नॉवेल्स इन हिंदी, यानी हिंदी में कथा, कहानी, संग्रह एवं उपन्यास जो लिखते हैं उनको यह प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है. इसमें भी फर्स्ट प्राइज है 20,000, सेकंड प्राइज है 10,000 एंड थर्ड प्राइज है 7,000. ये पुरस्कार भी जो भी आप हिंदी में कहानी वगैरह लिखते हैं, कहानियों का संग्रह लिखते हैं, तो वो संग्रह रेलवे बोर्ड अगर भेजते हैं तो वहां से अगर वो सेलेक्ट होता है तो देन यू कैन गेट दिस प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज. देन कम्स मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार. ये किसके लिए देते हैं? राइटिंग ओरिजिनल पोएट्रीज, ओरिजिनल गजल्स इन हिंदी. और हिंदी में जो मौलिक काव्य एवं गजल संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है. जो भी जिसको पोएट्री लिखने का शौक है, हिंदी में कोई गजल लिखते हैं, वो गजल का संग्रह पूरा जो उसका संग्रह बनाते हैं, उस किताब को अगर रेलवे बोर्ड भेजने के बाद वहां पर अगर सेलेक्ट होता है रेलवे बोर्ड द्वारा, रेलवे बोर्ड में 3 कमिटीज होते हैं, कमिटी द्वारा, कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो कमिटी मेंबर्स विल डिसाइड कौन सी पुस्तक पुरस्कार के लायक है. तो उस कमिटी द्वारा डिसाइड करने के बाद उन पुस्तकों को ये 3 प्राइजेस दिए जाते हैं. फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकंड प्राइज 10,000 एंड थर्ड प्राइज 7,000. यह है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार. अब आते हैं रेल यात्रा वृत्तांत अवार्ड स्कीम, यानी कि रेल यात्रा वृत्तांत जो भी लिखते हैं, जर्नी एक्सपीरियंसेस जो भी है वो आपको जो है अगर लेख के रूप में अगर लिखते हैं रेल यात्रा का,
उसके ऊपर भी पुरस्कार दिए जाते हैं। फर्स्ट प्राइज है 10,000, सेकंड प्राइज है 8,000 एंड थर्ड प्राइज इज 6,000। रेलवे जर्नी का जो भी आपका अनुभव है वो अगर लिखकर भेजते हैं हिंदी में जो भी रेल यात्रा वृत्तांत लिखते हैं उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 10,000, 8,000 एंड 6,000। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवार्ड फॉर ऑल इंडियन रेलवेज हिंदी एसे एलोकेशन एंड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशंस। तो अखिल रेल स्तर पर जो हिंदी में हिंदी निबंध, वाक और टिप्पण व प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं उनके लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें हर स्तर पर होते हैं प्रतियोगिताएं, डिविजनल लेवल पर, जोनल लेवल पर एंड रेलवे बोर्ड लेवल पर। अखिल रेल हिंदी पुरस्कार जो दिए जाते हैं उसमें जो भी ये प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, सबसे पहले तो जो मंडल स्तर पर जो भाग लेते हैं उनमें से 2 प्रथम और द्वितीय प्राप्त पुरस्कार वालों को क्षेत्रीय स्तर पर भेजते हैं, जोनल लेवल पर। और जोनल लेवल पर जो फर्स्ट आता है उसको रेलवे बोर्ड लेवल पर भेजते हैं हिंदी कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए। हिंदी ऐसे कॉम्पिटिशन है, हिंदी एलोकेशन कॉम्पिटिशन है, हिंदी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन है। इसमें आप सभी भाग ले सकते हैं, इसके लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। दैट इज फर्स्ट प्राइज 3,000, सेकंड प्राइज 2,500, थर्ड प्राइज 2,000 एंड कंसोलेशन प्राइज इज 1,500। एक मिनट बोलिए। तो सविता मैडम थे ना, उनको सर्विस सर्टिफिकेट है, तो मैं नहीं दी आएगा हाँ, तो मैं हिंदी में टाइप अभी है नहीं शाम नो आएगा नहीं, तो मैं हिंदी में एक बार बताइए। ठीक है। वो कुछ जीरोक्स को करना सो अखिल भारतीय रेल हिंदी निबंध, वाक और टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट प्राइज 3,000, द्वितीय पुरस्कार 2,500, तृतीय पुरस्कार 2,000 और सांत्वना पुरस्कार है 1,500। और उसके अलावा हिंदी वाक प्रतियोगिता है, हिंदी एलोकेशन में भी भाग ले सकते हैं। बोलने का, भाषण देने के बारे में कोई भी सब्जेक्ट जो दिया जाता है उस सब्जेक्ट पे आपको भाषण देना होता है। उस भाषण के लिए जो हिंदी वाक प्रतियोगिता बोलते हैं उसके लिए भी ये जो प्राइजेस हैं, फर्स्ट प्राइज 3,000, सेकंड प्राइज 2,500, थर्ड प्राइज 2,000 एंड कंसोलेशन प्राइज 5 कंसोलेशन प्राइजेस होते हैं इसके लिए 1,500 रुपए का 1,500। एंड सिमिलरली हिंदी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए भी ये प्राइजेस दिए जाते हैं 3,000, 2,500, 2,000 एंड 1,500 फाइव कंसोलेशन प्राइजेस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, अवार्ड्स फॉर रेल मंत्री हिंदी एस्से कंपटीशन। ये उन प्रतियोगिताओं के अलावा एक हिंदी एस्से कंपटीशन अलग से होता है। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता बोलते हैं इसको। जो रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता है उसके लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए 2 पुरस्कार होते हैं, 2 prizes फॉर ईच कैटेगरी। फर्स्ट प्राइज इज 6,000 एंड सेकंड प्राइज इज 4,000। 2 कैटेगरीज आर देयर, अवार्ड फॉर रेल मंत्री हिंदी एस्से कंपटीशन। उसमें जो है ऑफिसर्स कैटेगरी एंड एम्प्लॉइज का भी होता है, जो कि 6,000 रुपये गस्टेड ऑफिसर्स के लिए होते हैं और नॉन गस्टेड के लिए 4,000 होता है। और रेल मंत्री हिंदी एस्से कंपटीशन। ओके, अब उसके बाद आते हैं कलेक्टिव कैश अवार्ड स्कीम फॉर डिपार्टमेंट्स डूइंग मेरिटोरियस वर्क इन हिंदी। यानी कि हिंदी में जो सराहनीय कार्य करने वाले विभागों को सामूहिक नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता है। कलेक्टिव कैश अवार्ड फॉर डिपार्टमेंट्स यानी जो भी विभाग
यदि मान लीजिए किसी मंडल में सभी जो विभाग होते हैं, उन सभी विभागों में सबसे अच्छा हिंदी में कार्य करने वाला विभाग है, उन विभागों को कलेक्टिवली कैश अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, राजभाषा कलेक्टिव अवार्ड आर गिवन टू दोज डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलवेज which is adjudged as having made the maximum use of Hindi in their official work. हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले रेलों के विभागों को जिन्हें गठित समिति द्वारा अधिकतम प्रयोग के लिए चुना जाता है, उन विभागों को राजभाषा सामूहिक नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कलेक्टिव कैश अवार्ड बोलते हैं इसको। ये कलेक्टिव कैश अवार्ड है। फर्स्ट प्राइज 9,000 और उसमें जो है ईच पर्सन 1,500 रुपये फर्स्ट प्राइज के लिए, और द्वितीय पुरस्कार है 6,000 रुपये, यानी कि फॉर 5 एम्प्लॉइज 1,200 रुपीज ईच। फर्स्ट प्राइज फॉर 6 एम्प्लॉइज इन ए डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो अच्छा काम करने वाले 6 एम्प्लॉइज को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है, और दूसरे डिपार्टमेंट को 5 एम्प्लॉइज को 6,000 रुपये दिया जाता है, 1,200 रुपये ईच। एंड थर्ड डिपार्टमेंट को 4,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है, उसमें 5 एम्प्लॉइज को, प्रत्येक एम्प्लॉय को 800 रुपये प्रत्येक पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार कलेक्टिवली कैश अवार्ड के रूप में डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं। देन कम्स हिंदी टीचिंग स्कीम द्वारा लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्राइवेटली जो हिंदी एग्जाम्स होते हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा, जो ये परीक्षाएं पास करते हैं उनके लिए ये लमसम अवार्ड दिया जाता है। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पुरस्कार निजी प्रयासों से परीक्षा है जो उत्तीर्ण करते हैं उनको एक पुरस्कार दिया जाता है। फॉर प्रबोध 1,500 रुपीज, फॉर प्रवीण 1,600 रुपीज एंड फॉर प्राज्ञा 2,400 रुपीज। और टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी के लिए भी अवार्ड दिया जाता है। हिंदी टाइपिंग 1,600 रुपीज और हिंदी स्टेनोग्राफी 3,000 rupees. So these are the awards given for Hindi teaching scheme exams. Prabodh, Praveen and Pragya. Okay. अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होम मिनिस्ट्री अवार्ड। होम मिनिस्ट्री अवार्ड क्या होता है? सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए दिया जाता है। Again, होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर राइटिंग 10,000 words and above words in C region and writing 20,000 words above in Hindi in A and B region in a financial year for one unit of 10 members. The following awards are given below. जो कि A region के लिए, C region के लिए 10,000 शब्द योजना है एंड A and B region के लिए 20,000 शब्द योजना है। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना ग क्षेत्र में 10,000 और इससे अधिक तथा क व ख क्षेत्र में 20,000 और इससे अधिक शब्द मूल रूप से हिंदी में लिखने के लिए वित्तीय वर्ष में 10 कर्मचारियों के एक यूनिट के लिए निम्न प्रकार से पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी एक यूनिट में 10 आदमियों को, 10 एम्प्लॉइज को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। वो है फर्स्ट प्राइज 2 है 5,000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3 है 3,000 रुपीज एंड थर्ड प्राइज 5 है 2,000 रुपीज। इस प्रकार से 10 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। फर्स्ट प्राइज 5,000, सेकेंड प्राइज 3,000 एंड थर्ड प्राइज इज 2,000। हिंदी में सबसे अच्छा जो काम करते हैं। एंड नाउ कम्स रेलवे बोर्ड इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। रेलवे बोर्ड की जो इंडिविजुअल कैश अवार्ड है वो स्कीम भी दी जाती है, तो जो फॉर डूइंग मैक्सिमम एंड कमेंडेबल वर्क इन हिंदी, ऑफिसर्स एंड स्टाफ आर अवार्डेड विद कैश ऑफ ₹3,000 एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अंडर रेलवे बोर्ड्स इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम फॉर डूइंग मैक्सिमम एंड कमेंडेबल वर्क इन हिंदी ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि हिंदी में अधिकाधिक एवं सराहनीय कार्य करने के लिए रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना वर्ष के दौरान हिंदी में जो अधिकाधिक एवं सराहनीय कार्य करने के लिए रेलवे बोर्ड की जो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है उसके अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को 3,000 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
This is Railway Board's individual cash award. And now comes incentives allowance to typists and stenographers. इसके लिए भी अवार्ड दिए जाते हैं. स्पेशल अलाउंस ऑफ ₹160 and ₹240 per month will be granted to the typists and stenographers respectively for doing official work to the prescribed quantum in Hindi in addition to English. इंग्लिश के अलावा जो हिंदी में टाइपिंग करते हैं, स्टेनोग्राफी करते हैं, उनको भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं मंथली 160 और 240. एंड इसके अलावा है रेल मंत्री राजभाषा शील्ड. राजभाषा का जो शील्ड दिया जाता है, रेल मंत्री राजभाषा शील्ड, is being awarded to railways and also to divisions, officers, stations for doing maximum originating work in Hindi. A cash of ₹7,000 is also being given to those adjudged best division, best office, best station regarding implementation of राजभाषा. एक उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन वाले मंडल या स्टेशन को ₹7,000 नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है. यह पुरस्कार शील्ड के साथ दिया जाता है. राजभाषा रेल मंत्री राजभाषा शील्ड के साथ साथ ₹7,000 भी दिए जाते हैं प्रत्येक मंडल को और प्रत्येक कार्यालय को, प्रत्येक स्टेशन को. कोई भी जो रेलवे स्टेशन है जहां पर हिंदी में सबसे सर्वोत्तम का उत्कृष्ट कार्य हिंदी में अगर होता है, उस स्टेशन को पुरस्कार और ये शील्ड दी जाती है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, जनरल मैनेजर्स इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम, यानी कि महाप्रबंधक की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना. ये किसको दी जाती है? फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन हिंदी एंड अप्रिशिएबल वर्क डन इन हिंदी. प्रशंसनीय कार्य करने के लिए हिंदी में, उसके लिए ये महाप्रबंधक का पुरस्कार भी दिया जाता है. तो इसमें कितना है? 10 ऑफिसर्स एंड 30 स्टाफ. 10 ऑफिसर्स को और 30 कर्मचारियों को अवार्डेड विद कैश ऑफ ₹2,000 टू ईच ऑफिसर and ₹1,800 to each employee and a certificate of merit under general managers individual cash award scheme. यानी कि मुख्यालयों, मंडलों, कार्यालयों, स्टेशनों, कारखानों में हिंदी में 10,000 शब्द से अधिक शब्द लिखने तथा प्रशंसनीय कार्य करने के लिए महाप्रबंधक की नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत उन्हें पुरस्कृत किया जाता है. 10 अधिकारियों और 30 कर्मचारियों को, प्रत्येक अधिकारी को ₹2,000 तथा प्रत्येक कर्मचारी को ₹1,800 नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट कम्स टू डिविजन्स और ऑफिसर्स में जो टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी इन हेडक्वार्टर्स, डिविजन्स, ऑफिसेस, स्टेशंस, वर्कशॉप्स फॉर ऑफिसर्स गिविंग मोर डिक्टेशन इन हिंदी. हिंदी में जो डिक्टेशन देते हैं, जो भी लोग जो हिंदी में स्टेनोग्राफर्स जो भी डिक्टेशन लेते हैं, स्टेनोग्राफर को भी पुरस्कार दिया जाता है एंड ऑफिसर्स को भी फॉर गिविंग डिक्टेशन इन हिंदी टू एनकरेज देम फॉर हिंदी स्पीकिंग एरियाज में हुज वर्किंग प्लेस इन इज ए रीजन एंड ए नॉन हिंदी स्पीकिंग whose working place in C region. Railway officers will be given cash award of ₹2,000 each under this award scheme. यानी कि जो अहिंदी भाषी अधिकारी हैं, उनको हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रत्येक अधिकारी को ₹2,000 का अवार्ड दिया जाता है. ओके, तो ये पुरस्कार, सभी पुरस्कार योजनाएं examination point of view, these are all important schemes. If examination में अगर आपको ये पूछा जाए कि हिंदी में कार्य करने के लिए कौन कौन से पुरस्कार योजनाएं दिए जाते हैं, तो these are all the awards from 1 to 15. You can see from these awards, जो कि आपको मैंने शुरू से बताया, एक बार फिर आप देख सकते हैं. These are all awards, incentive schemes for राजभाषा, यहाँ से लेकर
आप ये पूरे जो अवार्ड्स हैं ये पूरे देख सकते हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार एंड लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार, एंड देन अवार्ड्स फॉर ऑल इंडिया रेलवेज हिंदी एसे एलोकेशन एंड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशंस। हिंदी एसे के लिए, हिंदी एलोकेशन के लिए एंड हिंदी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। एंड देन कम्स टू नंबर 7 अवार्ड्स फॉर रेल मंत्री हिंदी एसे कॉम्पिटिशन। और उसके बाद है कलेक्टिव कैश अवार्ड स्कीम फॉर डिपार्टमेंट्स डूइंग मेरिटोरियस वर्क इन हिंदी। एंड देन राजभाषा कलेक्टिव कैश अवार्ड, ये तो हो गया। फिर 9 पे आते हैं हिंदी टीचिंग स्कीम लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्राइवेटली हिंदी प्रबोध, प्रवीण एंड प्राज्ञा एग्जाम्स। फिर उसके बाद आते हैं नंबर 10 पे होम मिनिस्ट्री कैश अवार्ड 5,000, 3,000 and 2,000 each for 10 members, 10,000 words for C region and 20,000 words for A and B region। फिर उसके बाद है रेलवे बोर्ड्स इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। जो इंडिविजुअल कैश अवार्ड होता है रेलवे बोर्ड का, तो 3,000 रुपये अवार्ड और उसके साथ क्या सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी होता है रेलवे बोर्ड का इंडिविजुअल कैश अवार्ड। फिर नंबर 12 पे है इंसेंटिव अलाउंस टू टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर्स, वो भी है। फिर उसके अलावा है रेल मंत्री राजभाषा शील्ड। तो रेल मंत्री का जो राजभाषा शील्ड होता है वो शील्ड भी दिया जाता है, जो कि जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं मंडल, कार्यालय या स्टेशन, यानी कि जो भी उत्कृष्ट मंडल होता है जहाँ पर हिंदी में अच्छा काम हुआ है किसी मंडल पर या किसी कार्यालय पे, कोई भी कार्यालय है उसमें भी अगर हिंदी में अच्छा काम हुआ है या कोई स्टेशन पर अच्छा काम होता है तो उसको भी ये पुरस्कार और शील्ड दिए जाते हैं। एंड देन कम्स टू जनरल मैनेजर्स इंडिविजुअल कैश अवार्ड। उनके महाप्रबंधक का जो पुरस्कार होता है वो कई बार किसी को सर्विस में भी किसी को नहीं मिलता है, तो हिंदी में काम करते हुए हिंदी का जो भी सेवा करते हैं, हिंदी में जो भी अपना कार्यालयीन काम हिंदी में करते हैं, उन सभी को जो है महाप्रबंधक की नकद पुरस्कार के अंतर्गत उनको पुरस्कृत किया जाता है। फिर उसके अलावा जो हिंदी में डिक्टेशन देते हैं अधिकारी, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग ऑफिसर्स हैं, वो अधिकारी जो हिंदी में डिक्टेशन देते हैं वो उनको भी जो है पुरस्कार दिया जाता है। 2,000 रुपये का अवार्ड उनको भी दिया जाता है। तो दीज आर द इंसेंटिव स्कीम्स। और जैसा मैंने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हिंदी के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दिए गए उन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी के बारे में आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब आप लोग अपना क्वेश्चंस, अपने सवाल जो भी है वो पूछ सकते हैं। नागेश्वर गारू अंदर अनम्यूट చేసేయండి, सभी का अनम्यूट कर दीजिए ताकि जो भी कोई सवाल पूछना चाहे Yes, all are unmuted. पूछ सकते हैं। If anybody wants any doubts, कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो डाउट पूछ सकते हैं किसी भी बारे में, राजभाषा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान या फिर किसी भी चीज के बारे में। 1 मिनट, ओके, हाँ बोलिए। हाँ है, हाँ 85710 भेजो। ओके ओके, तो चलिए बताइए और कुछ आपकी तरफ से जो भी पूछना हो पूछिए। जैसा आप मेरा नंबर भी देख रहे हैं 9490753951, ये भी मेरा नंबर है। जब कभी किसी को भी कोई डाउट हो तो आप उसके लिए जो है नंबर पे आप मुझे डायल कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आप लोग उसका जो है फीडबैक भी दे सकते हैं। जो भी फीडबैक देना चाहें तो जरूर। राजभाषा की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आप अपना फीडबैक दें। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ आप लोगों को
समझ में तो आया होगा राजभाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एंड द इंसेंटिव्स फॉर राइटिंग इन हिंदी। ये सारी चीजें आपने देखा होगा। ये फीडबैक चल रहा है। कई लोगों ने एक्सीलेंट दिया है, वेरी गुड 10%, एक्सीलेंट 80%, गुड आनंद जी, 10%। चैट बॉक्स में क्वेरीज है, सजेशन फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग इन हिंदी इन रेलवे ऑफिसर्स। What about first, second and third prize for both Pragya and Praveen and Pragya? हाँ, तो इसके लिए मैं बता दूं, जैसे कि मैंने बताया इंसेंटिव्स में प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञा के लिए जो अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसमें जो मैंने बताया आपको, इसमें एक बार आप देख सकते हैं। एंड अवार्ड्स विनर्स वेयर दीज अवार्ड्स पब्लिश्ड प्लीज। ओके, सभी के क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके सर, मैं प्लीज प्रेस 5 फॉर प्रेजेंटेशन मोड। सर आज हिंदी क्लास है तो हिंदी में भी बोलिए। तो कई लोगों ने हिंदी में बोलने से भी एतराज किया, तो अंग्रेजी में भी मैंने कहा, तो हिंदी में भी मैंने बताया, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिली जुली भाषा में बोला जाता है, क्योंकि कई लोगों को हिंदी नहीं जानते हैं, तो अंग्रेजी में भी मैंने इसको प्रस्तुत किया। ओके, नॉट मूविंग। ओके, काइंडली शो द रिलेवेंट स्लाइड्स, वो भी बता दिया है। व्हाई तमिलनाडु इज एग्जम्प्टेड? तो राजभाषा नियम जो है तमिलनाडु के लिए इसलिए एग्जाम किया गया है कि ये पॉलिटिकल इश्यू बन गया है कि तमिलनाडु के लोगों को वहां पर राज्य में वो हिंदी के लिए अपोज किए हैं। तो राजभाषा नियम जब बनाया गया 1976 में, तो उस समय तमिलनाडु को जो है इसको एग्जाम किया गया है। सेशन फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग इन हिंदी इन रेलवे ऑफिसर्स। हाँ, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि हाउ टू इंक्रीज वर्किंग इन हिंदी इन रेलवे ऑफिसर्स। तो इसके लिए एक ही उत्तर लिखना है कि जो भी स्कीम्स हैं, दैट स्कीम्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल रेलवे ऑफिसर्स। हिंदी कॉम्पिटिशन्स हैं, हिंदी स्कीम्स हैं, वो सभी स्कीम्स अगर पुरस्कार लागू करेंगे तो उसमें जो है आपको हिंदी काम का बढ़ावा देने के लिए काफी मदद मिलेगी। तो ये इसमें उसका जो है आप उत्तर लिख सकते हैं कि all incentive schemes should be implemented in all offices. Where to get the know the complete details of such award winners? Where are these works published, please? हाँ, तो इसके बारे में मैंने बता दूं कि जो राजभाषा की साइट है, गृह मंत्रालय की एक साइट होती है, वो गृह मंत्रालय की साइट rajbhasha.com, यू कैन नोट डाउन, rajbhasha.com एक साइट है। उस साइट में आप जाके जो है इन सभी के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। अवार्ड विनर्स एंड ऑल जो भी पुरस्कार प्राप्त करते हैं, उन सभी की जो है सूची उसमें दी जाती है। rajbhasha.com, that is the site for award winners list. ओके, अब आते हैं व्हाट अबाउट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज फॉर प्रबोध, प्रवीण एंड प्राज्ञा। तो प्रबोध के लिए एक ही अवार्ड होता है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज नहीं होता है। प्रबोध के लिए एक प्राइज होता है, सेकंड के प्रवीण के लिए एक होता है, प्राज्ञा के लिए एक होता है। उसमें मेरिटोरियस मार्क्स जो लेते हैं उसके लिए प्राइज दिया जाता है। मेरिटोरियस मार्क्स, दैट मीन्स 55% एंड अबव, दैट इज मेरिटोरियस मार्क्स, एंड 60 to 70%, 70 एंड अबव, उसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। फर्स्ट इज 800, सेकेंड इज 1600 एंड थर्ड इज 2400। ये 3 प्राइजेस उसमें दिए जाते हैं। ओके, नाउ कम्स वेरी गुड क्लास ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सभी लोगों ने धन्यवाद दिया। ओके, उसके अलावा भी आपको और जो कुछ भी जो है rajbhasha.com जैसे आपने कहा, तो इस पर आप देख सकते हैं। कभी भी rajbhasha.com जो साइट है, उस साइट पे आप जाकर
सारा इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा। ओके। Okay, if there are no further clarifications, then we'll wind up the session. जी On behalf of the academy, I thank Sri S. Anand Kumar ji, Rajbhasha Adhikari, Research South Central Secunderabad. Thank you, sir. Thank you so much. You have also clarified many doubts of the participants. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Dhanyavad, dhanyavad. Tomorrow also we have same time. The login period is 2:45 and the session starts at 3 o'clock. Thank you all. Thank you so much. थैंक यू सरोज जी, थैंक यू बनर्जी, नमस्कार।